Agavesis. Okay, just wait for a few minutes. I'm gonna start lecture. Wait for a while. Okay, miss. Okay, so this lecture is based on plant diseases caused by parasitic higher plants. More than 2,500 species of higher plants are till date known to live parasitically on other plants. So they are also pests. We are ending the course now. Uh, so अब तक तो पता ही होगा कि पेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है. क्यों कह रहे हैं हम इन्हें पेस्ट? क्योंकि हमें से नुकसान पहुंचाते हैं ना प्लांट्स को। बिकॉज दे आर अनडिजायर्ड. सही है. Parasitic plants, uh, main common characteristic of all parasitic plants are they are vascular plants which have a specialized organ which can penetrate into the tissues of host in the vascular bundles or in the xylem or phloem of the host ताकि वहाँ से ये अपना फूड जो है वो हासिल कर सकें. And they also produce flowers and seeds. They belong to many different plant families. They don't have chlorophyll, or if they have, it's a very little amount. No roots, no true roots are available. They have rhizoids for the penetration in the host tissues. जो जीनस मशहूर है इनके हुए कस्क्यूटा, कैसाइथिया, and all of these belong to different families.
आर्क्यूथोबियम, दिस वन फोराडेंड्रॉन, और इसको फ्लोडेंड्रॉन भी बोलते हैं, ओरोब्रैंकी स्ट्रीगा। द मोस्ट फेमस वन इज कस्क्यूटा, जिसे आप कॉमनली कहते हैं डोडर। Doders are very much highly distributed in all over the world, America, Europe, Africa, Southern Asia, Australia, सब जगह, including Pakistan. Crops that suffer losses from doders include alfalfa, onions, sugar beets, ornamentals, and potatoes, and many other trees which are being included in the ornamental category. Doders affect the growth and yield of infected plants. Losses range from slight to complete destruction of the crop in infested area. इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? येलो और ऑरेंज वाइन स्ट्रैंड्स ग्रो एंड इंटरवाइन अराउंड द स्टेम्स। पूरे के पूरे जो स्ट्रैंड्स हैं इनके लीव्स के ऊपर, ट्विग्स के ऊपर, मेन स्टेम के ऊपर, सब जगह ये वाइंडिंग करते हैं अबव ग्राउंड पार्ट्स। The growing tips reach out and attack adjacent plants until a circle of infestation forms up to 10 feet in diameter. Is formed by a single dodder plant. ठीक है, यानी एक पूरी अपनी कैनोपी बना लेते हैं ऑन द अपर पार्ट्स ऑफ ट्रीज। डोडर इन्फेस्टेड पैचेस इन द फील्ड कंटिन्यूज टू enlarge during the growth season, and perennial plants such as alfalfa become larger every year in the late spring and in the summers. Okay, यानी they favor the warmer season. Clusters of white, pink, and yellowish flowers can be observed. मेजर जो इसका स्पीशी मशहूर है वो है कस्क्यूटा। ठीक है, सेवरल स्पीशीज, उर्दू में इसको क्या नाम है? कैन एनीवन टेल मी? कभी सुना है? किस चीज का? कस्क्यूटा स्पीशीज किसी पैरासिटिक प्लांट का नाम कभी सुना है? उर्दू में बड़ा फेमस होता है ये। लिटरेचर में इसका बहुत जिक्र होता है। अमरबेल, heard before or not? नो बस। Okay, fine. चलिए, आप सुन लिया। You can see here in the pictures, इस तरीके की अपीयरेंस देते हैं। पिंकिश ऑरेंजिश सी ये है। ठीक है, व्हाइट कलर के फ्लावर्स हैं, मोस्टली पिंक फ्लावर्स भी होते हैं, और ये पूरे के पूरे प्लांट पे ऐसे लिपट जाते हैं। सी, ठीक है। There are many species of Cuscuta exist. Some species prefer legumes. Some species attack other broadleaf plants. Some species attack higher trees. Uh, Dodder is a slender twining plant, यानी simple बेल है ये। The stem is tough, curling, thread-like and leafless होता है, bearing only minute scale in places of leaves. The stem is usually yellowish or orange in color, sometimes tinged with red or purple. मतलब आपको शेडिंग मिल सकती है इसकी रेड और पर्पल की। Sometimes ये purely white भी होता है, depending on the species. Cuscuta is a genus, species can be different. Clusters of tiny flowers occur on the stem from early June until frost, यानी जून से स्टार्ट होंगे तब तक जब तक शदीद सर्दी ना आ जाए। Grey to brown seeds are produced in abundance by the flowers and mature within few weeks after bloom. डेवलपमेंट कैसे होती है डिजीज की? डोडर सीड ओवरविंटर्स इन इन्फेस्टेड फील्ड और इज मिक्स्ड विद द सीड ऑफ क्रॉप प्लांट्स ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन। द सीड germinate and produces slender yellowish shoot but no roots. This leafless shoot rotates. जब ये शूट रोटेट करेगी और अपना साइज एनलार्ज कर रही है तो ऑब्वियसली अगर सराउंडिंग में कोई ट्री प्रेजेंट है तो इट कैन रीचेज आउट टू इट। मोर ओवर, जब ये इनके सीड्स प्रोड्यूस होते हैं तो सीड कैन बी ट्रेवल थ्रू एयर और बाय एनी अदर मीन, और जब ये किसी और प्लांट के ऊपर पहुंचते हैं तो ये वहाँ पे जर्मिनेट कर सकते हैं। So this is how disease develops. इनका कंट्रोल क्या है? डोडर इज बेस्ट कंट्रोल बाय प्रिवेंटिंग
its introduction into field by the use of Dodder free seeds. ये सीड्स के अंदर इन्फेस्टेशन कॉज करते हैं होस्ट प्लांट के, ठीक है। और जब आप नया होस्ट प्लांट करते हैं तो इसके साथ साथ भी इनकी जर्मिनेशन होती है, तो बेहतर ये है कि आप हेल्दी सीड यूज़ करें। दिस इज हाउ इट लुक्स इन द ई पिक्चर। जब इनकी इन्फेस्टेशन शदीद हो जाए तो ये इस तरीके के नजर आते हैं। नॉट ओनली बाय फीडिंग बट ऑल्सो देयर वेट भी डैमेज कॉज करता है। जैसी बात है, इतना हैवी वेट हो जाता है आफ्टर सम टाइम पीरियड कि शूट्स कैन ब्रेक डाउन ऑल्सो ऑफ द होस्ट प्लांट। एंड मिस ये कुछ बालों वालों की तरह सा लग रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल बारीक इनके स्टेम्स हैं। एंड मोस्ट ये तो और भी प्लांट्स के ऊपर होते हैं ऐसे। हाँ, आपने नोटिस किया होगा आजकल कराची में ये काफी हो रहा है at many different places in the on the roadside fields. जी जी। सही, थैंक गॉड कुछ ऑब्जर्वेशन निकली। सही, so many जी of you have मिस। noticed it. Good. ठीक है, इसका डिजीज साइकिल हम इमेज के थ्रू पढ़ते हैं। डोडर सीड्स ओवर विंटरिंग इन सॉइल, ठीक है, यानी अपना एक टाइम पीरियड गुजार रहे हैं, डोरमेंट स्टेज से गुजर रहे हैं, जर्मिनेशन कर रहे हैं। यंग डोडर सीडलिंग रोटेट्स, ये रोटेट करता है, ठीक है, और सराउंडिंग में जो भी इसको प्लांट मिलता है, अगर मिलता है, ठीक है, तो ये उसके ऊपर इन सर्किल करेंगे और पूरे के पूरे प्लांट के ऊपर फैलेंगे, बराबर में जो ट्री है उसके ऊपर फैलेंगे। इस इमेज को देखिए, यहाँ पे आई एम हाईलाइटिंग इट। यहाँ पे आप देखिए इनके जो हॉस्टोरिया है वो अंदर पेनिट्रेट करें इनसाइड द वेस्कुलर बंडल टू टेक द फूड। फूड के लिए कहाँ पे पेनिट्रेट करेंगे? इन द जाइलम और इन द फ्लोएम? मिस फ्लोएम में ना। फ्लोएम। ये ग्रो करेगा, सीड बनाए, फ्रूट फ्लावर बनाएगा, फ्लावर के बाद फिर सीड बनेगा, ठीक है। डोडर फ्लावर लुक्स लाइक दिस, क्लस्टर की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद सीड बनेंगे। सीड इज अ कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर। सीड्स फॉल ऑफ करेंगे, अगेन ये जो है वो इन्फेक्ट करेंगे इन द सराउंडिंग रीजन, सराउंडिंग प्लांट्स, और फिर ये सीड प्रोड्यूस करेंगे, सीड अगेन जनरेट करेगा। तो इट्स अ वेरी सिंपल लाइफ साइकिल और यू कैन से डिजीज साइकिल। ओके, एनी क्वेश्चन लेफ्ट? जी मिस। नो मिस, नो क्वेश्चन। ओके, 1 second. Okay, I will show you your course outline right now. Wait a second. आप लोगों ने इसका मुझसे कहा था, सो आई थॉट कि अभी मैं आपको इन द लास्ट एक बार दिखा दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने इसको कितना कंप्लीट किया है। और काफ़ी किया है, लेकिन चूंकि बहुत लेट सेशन स्टार्ट हुआ है तो कुछ चीज़ें जो है वो हरी में कंप्लीट की गई हैं, कुछ चीज़ें आपको असाइनमेंट में कंप्लीट करने को दी गई हैं, ठीक है। You can see ओके मिस। how the lecture breaks, okay. We have studied it, this, ठीक है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ लिया है, नहीं, all of these. मिस हमें दिख नहीं रहा स्क्रीन पे कुछ। Yeah, I've shared it. Okay, I will again share it. मिस ऐसे नहीं हुआ, सही सही सी
ठीक है, जी मिस दिख रहा है. दिख रहा है. यू कैन टेक इट फ्रॉम CMS ऑल्सो, CMS पे ही अपलोडेड है. ठीक है, CMS पे. ओके मिस. इवन दो अब ये कि मिड हो गया है और फाइनल के लिए आपको इसकी नीड होगी, और आगे भी आपको पता होना चाहिए कि आपने किस कोर्स में क्या पढ़ा था. तो आप इसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा. ओके मिस. ठीक है, ऑल ऑफ दीज लेक्चर्स हैव बीन डन एक्सेप्ट दिस वन. ये मैंने आपको नहीं कराया है क्योंकि ये मैंने आपको असाइनमेंट में दिया है डिटेल. ठीक है, और चूंकि हम ये कल्चरल, मैकेनिकल, फिजिकल, ऑल केमिकल मेथड्स हैव बीन स्टडीड इन डिफरेंट डिजीजेस, डिजीज मैनेजमेंट. जी मिस. हर डिजीज के साथ हमने इसको थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस कर लिया था. ठीक है, इसलिए इसको मैंने छोड़ा है ताकि ये आप खुद से कर लें और बाकी जो है वो लेक्चर में कंप्लीट हुआ है. सही है, तो दैट इज व्हाई टुडेज लेक्चर वाज इम्पोर्टेंट, ताकि आई कैन कंप्लीट. ओके मिस. सही है. Yes, miss. जी मिस. Okay, any other questions? So, or else I'm gonna end this. नो मिस, नो क्वेश्चन. Okay, thank you. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज मिस. थैंक यू मिस.